Assalamu alaikum dear students. The concept of the functions क्या है? A function from the set to the set y is a special relationship between input value of x and output value of y such that each element of x is related to unique element of y and is denoted by such as um, the set of x is called domain of the function, and the set of y is called a codomain of the set. And what is the range of the function? The set of all the corresponding value of y is called range of the functions. या सिंपली आप इसको ये कह सकते हैं कि output the set of all the images या the set of output value of the function is called range of the functions. लेकिन है क्या, फंक्शन क्या है? एक स्पेशल रिलेशन है जिसमें ये भी होना चाहिए कि each element of x is related to unique element of y. अगर किसी भी रिलेशन में ये हैसियत पाई जाए तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? फंक्शंस का नाम दे सकते हैं। दूसरी बात ये the historically the term functions denoted the dependence of one quantity on the other quantity, or the quantity x is called independent variables and the quantity y is called dependent variable. We write the function such as and we read as y is a function of x. Yeah, the equations y is equal to 2x defined as y function of x because each value is assigned to x to determine the unique value of y. तो इसमें जो हमारे पास क्या है, x क्या है हमारे पास, इनपुट वैल्यू भी हम कह सकते हैं, s को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं और s को हम प्री इमेजेस का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर हम y की जिक्र करते हैं तो y को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हमने क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, इमेज ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं, आउटपुट वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, यानी फंक्शन क्या है? द टर्म फंक्शन डिनोट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन द अदर क्वांटिटी. The quantity x is called independent variables and quantity y is called dependent variable. तो इस नोटबुक को बात करते हैं यूनिक एलिमेंट y of y that is related to x by f, और f को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं? f of x. इसको किस तरह हमने रीड करना है? f of x, या हम इसको क्या कहते हैं? the value of a function at x, या और the image of x under f हम इसको कह सकते हैं। तो अब फंक्शन तो हमने कंसेप्ट की एक स्पेशल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और लेकिन इसमें एक खास खासियत होना चाहिए कि each element x is related to unique element of y. लेकिन how will define a function of one variable or two variable or three variable and a function of n variable? We will define such as the function of one variable, a function of f of one variable x is a rule that assign a unique real number f of x to each point x in the sum set D of the real line. A function of two variables, a function f in two variable x and y is a rule that assign unique real numbers.
अगर हम इसको आउटपुट वैल्यू इनपुट वैल्यू देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ऑफ एफ एक्स एंड वाई टू ईच पॉइंट इन द सम सेट यानी डोमेन सेट ऑफ द एक्स वाई plane. So the function of three variable we will define is a function f in three variable x, y and z is a rule that assign unique real number of a function x, y, z to each point of the domain set यानी each point यानी x, y in the sum domain set D of three dimensional space. अगर हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन तो क्या हम किस किस्म का शेप देगा, प्लेन देगा, एरिया देगा प्लेन. अगर हमारे पास वन वेरिएबल है तो इसका ग्राफ किस तरह देगा, रियल लाइन. अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल फंक्शन है तो आपको क्या देगा, थ्री डायमेंशन स्पेस. अगर हमारे पास क्या है, द फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हो तो हम उसको इस तरह डिफाइन, अ फंक्शन if in n variable real numbers x1 x2 x3 and all the way xn is a rule that assign unique real numbers w is equal to f of x1 x2 x3 all the way xn to each point in some set d means domain set of the n dimensional space. तो हम इस तरह इसको, अगर वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. हमने फंक्शन को इनपुट वैल्यू देना है तो हमारे पास क्या था, रियल नंबर देना है. अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, 2 नंबर्स हो, ऑर्डर 2 पॉइंट्स हो, 2 रियल वेरिएबल हो तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर. लेकिन उसका स्पेस क्या होगा, एरिया का एक्स वाई प्लेन. अगर हम थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड साइन तो फिर भी यूनिक रियल नंबर क्या आएगा, रियल ऑफ द फंक्शन आएगा. किसी भी डोमेन सेट से अगर आप 3 वेरिएबल पुट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो आपको क्या होगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस. इसी तरह एन वेरिएबल को भी क्या देता है आपको, यूनिक रियल नंबर्स. तो इस पर एग्जांपल से हम किस तरह एग्जांपल कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द फाइंड द वैल्यू of variable of one variable function, two variable function, three variable functions, such as find the value of a function at a point. लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को देखिए, ये कौन सा वेरिएबल फंक्शन, वन वेरिएबल. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0. हाउ टू वैल्यू कैलकुलेट ए पॉइंट्स -1 एट पॉइंट 2a एंड इस तरह. अब देखिए इस तरह एक को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8.0. तो पुट द वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, सिंप्लीफाई तो -1/2. तो इस फंक्शन का वैल्यू 8.0 पर इसका क्या है, -1/2. सिमिलरली बी को देखें, -1 पर चेक कर दें, पुटिंग द वैल्यू -1, यहाँ पर -1² से 1 आ जाएगा. फिर इसको ऐड कर दें बाय सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, -2 इज इक्वल टू 2. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस 8.-1 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3. सिमिलरली सी को हम 0.22a तो पुट द वैल्यू 2a इनपुट वैल्यू आप पुट कर दें, यहाँ पर x और यहाँ पर 2 स्क्वायर ले लें तो 4 आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस 2 तो ये उसका वैल्यू होगा. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8.2a इज इक्वल टू 2a-1 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 2. सिमिलरली अब देखिए डी पॉइंट्स को हमने किस पॉइंट को वैल्यू फाइंड करना है, इसी फंक्शन को 8.1/x. अब देखिए 1/x को यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर क्या 1/x, यहाँ पर पुट कर दें 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 1/x -1 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2. अब देखिए इसको एलसीएम ले लें, इसका भी एलसीएम ले लें बाय सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन. हमारे पास किया जाता है x -1 x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर. और इसी तरह हम के फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x प्लस h. तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1x प्लस h यहाँ पर पुट कर दें
और x प्लस एच स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर ओपन कर दें x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाइड हो सकते हैं सिंप्लीफाइड कर दें तो ये उसका वैल्यू हो जाएगा इस फंक्शन का। द फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट पॉइंट x प्लस एच इज इक्वल टू x प्लस एच माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ये इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट आप देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कौन सा पॉइंट है 3 वेरिएबल फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x एंड y z यहाँ पर पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर रूट एट द पॉइंट 304 इज। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 3 है, y का वैल्यू क्या है 0 है और z का वैल्यू क्या है 4 है। पुटिंग द वैल्यू x का वैल्यू 3 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 12 इसको सिंप्लीफाइड कर 9 16 प्लस 25 अंडर रूट इसका फाइंड कर दे 5। तो the value of the function at point 304 is equal to 5। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को नाउ कंसीडर द फंक्शन fx is equal to x plus xy cubic root। तो find the value of this function at 2 4। इस फंक्शन का वैल्यू at 2 4 पर फाइंड कर दे। तो यहाँ पर या x पोर्शन है ये y है, जहाँ पर x वहाँ पर 2 लगा दे, जहाँ पर y है वहाँ पर 4 पुट कर दें। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 2 लगा दे, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 2 लगा दे और y की जगह क्या लगा दे 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 और फिर इसका क्यूबिक रूट ले लें और इसे क्या जाए क्यूबिक रूट को सिंप्लीफाइड कर दे तो इसे क्या आता है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। The value of the function at point 2 4 is equal to 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अगर हमारे पास t स्क्वायर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है तो यहाँ पर t x की जगह पुट कर t स्क्वायर y की जगह। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दे t और यहाँ पर x की जगह क्या लगा t और यहाँ पर y की जगह क्या होगा t स्क्वायर। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर तो t क्यूब होगा और इसको मजीद क्यूबिक रूट को इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ओनली टी आ जाएगा। लाइक टर्म है तो लाइक टर्म शुड बी एडिड तो इसे क्या आ जाएगा 2 प्लस टी आ जाएगा। सिमिलरली सी पार्ट को देखें दी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x एंड x स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x लगा दें और जहाँ पर y है वहाँ पर y स्क्वायर। तो इसको ज़रूरत दे दे तो यहाँ x इसको सिंप्लीफाइड कर तो इसे क्या आएगा 2x। सिमिलरली यहीं पर भी फंक्शन द वैल्यू एट पॉइंट 2x y स्क्वायर और 4y। तो यहाँ पर x की जगह रिप्लेस कर दिए y की जगह रिप्लेस कर दे तो x की जगह क्या है यहाँ पर क्या लगा दे 2y स्क्वायर प्लस x की जगह यहाँ पर क्या लगा दे 2y स्क्वायर, y की जगह क्या होगा 4y। इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 और y क्यूब, इसको मजीद मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई क्यूबिक रूट ले लें 8y क्यूब का तो इसे क्या आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या है सिंपल y आ जाएगा और ये लाइक टर्म नहीं है अनलाइक है तो ये इस तरह छोड़ दें। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2y स्क्वायर 4y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2y। तो ये उसका वैल्यू होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप मुझसे व्हाट्सएप या जीमेल के ज़रिए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।